हुआ है। या okay. Uh, Can you see me, sir? yeah, I can hear you. I can see you, Ellen. Yeah, Okay, and sir. I can see your friend also. Okay, Jahin. What I will do is, before I start my talk oblique interview with you, I will try and present try and show you a screen, a PowerPoint presentation, which will tell you a bit about the Northeast to our audience. So very briefly, I'll talk about it, and then I'll come to General Ellen. Okay. I take this opportunity to welcome everybody on our another presentation on Northeast. And I have with me today General Ellen Singh, who's an expert on Northeast. He is from the Indian Army, and I will briefly again introduce him after I introduce the subject. Firstly, I'll speak a bit about Northeast, just for the sake of information of everybody. Northeast consists of the states which are shown here. You have uh, uh, Arunachal Pradesh right up on the top. Then you have Assam, which is in between. Then thereafter, if you go from right to left, then you have Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya. All these states, they are called Seven Sisters. And one state which is not marked here properly is the state of Sikkim. And here is rest of India, which you can see here. And very briefly, if you look at the Northeast, you find that it has borders with many other nations, especially China. Then you have Myanmar, and then you have Bangladesh. Traditionally, when Northeast was looked at, it was looked at as a security challenge because the Chinese are there on the Arunachal Pradesh border. You have a long border with Myanmar, at times creating a problem. Then you have a border with Bangladesh. But I look at it Northeast as a step for towards progress. It is a state which has got, it is an area which has got a tremendous potential of many regions, etc. So I will discuss all these issues with our guest today, General Ellen Singh. Very briefly, I'll also show you some other areas, connectivity in the Northeast today. We are talking of by sea going to Sitwe in Myanmar, from there entering the state of Mizoram. Just imagine how much of distance is reduced. Otherwise, if you had to go to Northeast from Calcutta, you go completely like this, come like this, and then go to various states, either this side or this side. But if you have the sea route, Mizoram is so near. Then we also look at Northeast infrastructure in terms of using the rivers Ganges and Brahmaputra to enter various points of Northeast. It is a work which is in progress, and I'm sure in the days to come, it will become a complete reality. Again, this project called as the Kaladang project is shown to you, 539 kilometers of sea route. Thereafter, you go along the Kaladan River, Sitwe, you land up and enter Mizoram, and from there, other states of Northeast. Various infrastructure projects which have been going on in the Northeast, including bridges on the river, including tunnels for railways, etc. And this picture really makes me feel very nostalgic because this used to be the picture which was shown to us
before the Bogeybill Bridge was built, and now here how the Bogeybill Bridge looks. I've spent a fair amount of time of my life in the Northeast, and I can tell you as to how much time we used to require to go to Northeast. These are the various bridges that you have. Then you have the national waterways via Bangladesh, via Myanmar, etc. And of course, the most important project is the Look East. While Moreh in Manipur, you enter the nations towards our east as a part of our Look East policy. So this is what we will talk about very briefly. I'll tell you that Northeast in terms of population is roughly 4% of population, while nearly 8% of geographical area of ours is in the Northeast. Of course, these are the figures of population of 2011. We are going to have a census in 2021, and hopefully better figures will come up. Density of population, very less. Languages, nearly 400. Ethnic, 75 languages, 400, etc. So this is what Northeast is for you. And these are the various states of Northeast. You have Arunachal Pradesh, you have Nagaland, Manipur, Mizoram, and General Ellen is from Manipur, Tripura, Meghalaya, Assam in between, and Sikkim is what you have. This is the state of Manipur, which of course we'll talk about later. State of Meghalaya very briefly, state of Mizoram, and that is what it is. Now what I will do is, before I start with the topic per se, I will reintroduce General Ellen Singh to you. General Ellen Singh is from the Indian Army. He is from the Intelligence Corps. He initially was commissioned into 9 Jack-LI. Thereafter, after serving there for a few years, he got himself changed over to Intelligence Corps. He's an expert on China. He's an expert on Myanmar, Bangladesh. He's visited these countries a large number of times. He's held a number of important appointments in the Indian Army, in the Northeast, on the China border, on the Pakistan border. And what I must tell you is that he has got a distinguished 40 years service in the Army. He has been awarded Vishishta Seva Medal twice, and the commendation card, which is given by the Chief of Army Staff, he's got it 3 times. So he's a very distinguished officer, a very well qualified officer with whom we would love to talk on various issues of Northeast. And what I must tell you before I speak to General Ellen is the last session that last Sunday we had with General Ellen was on the Indian National Army of Netaji Subhash Chandra Bose, how it came right up to Manipur, Imphal, and all those areas. And he very nicely explained that, actually when we talk of 1947, when we talk of independence of India, the contribution of Indian National Army, the contribution of people of Manipur to the independence, which is not adequately recognized. We all know that they have contributed a lot, but unfortunately in our history books, in our normal media, this is not recognized as much as it should be. So General Ellen explained all that to you. And I must tell General Ellen also that our view, the number of views that we got both on the Facebook as well as YouTube was very good. And I'm sure today's session will also get adequate publicity, adequate clientele, adequate number of people will attend. I can see some friendly names there, including Anuj Mathur, who was a brigade major when I was commanding a battalion in Northeast. Sir, thank you very much, sir. What a great pleasure. Yeah, Anuj, okay. Nice. We are on the WhatsApp connected. Okay. Yes, so sir. Yes, now, indeed. Yeah. Now, over General Ellen. Before I hand over the mic to General Ellen, the aspects that we want to cover today is firstly contribution of Northeast to India's national security. We have 2 important institutions here. First, you have the Assam Rifles. Then you have the Assam Regiment. And then you have many central armed police forces like the BSF, the CRPF, etc. And the number of people from Northeast is extremely large here. And the Northeast is not only contributed to the soldiers in these institutions, in these paramilitary forces, armed forces, but they have also contributed greatly to the bravery. In fact, just a few days back, Captain Kangaroos, who, I hope I have pronounced the name correctly, he is from Manipur. He was awarded with Mahavir Chakra in the Operation Vijay or the Kargil War, and Assam Rifle recently celebrated his 43rd
birthday at Imphal. I was very touched by the ceremony. The IGP of Assam Rifle, General, I'm just forgetting his name, he himself was present for the function. So there I have a large number of gallantry award winners from Northeast, including Ashok Chakra, including Shaurya Chakra, Sena Medal, etc. The number is very large. So now, before I hand over to General Ellen Singh, General Ellen, I would like to ask you as to how come so many soldiers, so many people from Northeast join the armed forces and help in securing the countries, and what is their contribution in armed forces, in the paramilitary forces, and also in the various central armed police forces that we have in the country. General Ellen, contribution of Northeast people in securing the country. सभी को मेरा प्रणाम. Can you hear me, sir? Yeah, we can hear you. सभी को मेरा प्रणाम. Yeah. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जैसे महाजन जी ने बताया है, लेकिन एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारा जो भारत वर्ष के साथ जो लिंक है वो करीब सिर्फ 30 किलोमीटर है और करीब 4500 किलोमीटर का इंटरनेशनल बाउंड्री है. ये काफी है. तो इसलिए लोग बार बार हमको बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट का लोग इंडिया का मेन लैंड में के साथ शामिल होना चाहिए. उसकी जगह मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेन लैंड जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में जो रहता है हम बड़ा खुश है. हम भारतवासी है. हम इन एनी वे वी आर नॉट लैकिंग एनीवेयर. इनफैक्ट कई चीज जो बाकी लोग हमसे जो उदाहरण ले सकता है. और ये आप देखिए, जब इंडिया में अंग्रेज आए थे, नॉर्थ ईस्ट वाज द लास्ट एरिया जो अंग्रेज के नीचे आया था. इनफैक्ट मणिपुर वाज द लास्ट किंगडम टू कम अंडर द ब्रिटिश. दे केम अंडर ब्रिटिश एज लेट एज 1891 में ही अंग्रेज के नीचे आया. तब तक वो इंडिपेंडेंस था. इसके अलावा जब असम में मुगल आया था तो मुगल जनरल को असम का एक जनरल जिसका नाम है लचित बरफुकन, उन्होंने बैटल ऑफ सरायघाट में बुरी तरह से हराया था. वही फौज मणिपुर में भी गया. मणिपुर के राजा ने उनका काफी तादाद में प्रिजनर पकड़ के उसको बोला कि दोबारा मत आना. उनके कुछ स्काउट पहुंच गए थे वहां पर, बोला कि दोबारा मत आना, हम बाकी को हॉस्टेज के तौर पर रख रहा है, अगर आप लोग आएगा तो हम इनको डील करेगा. ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू नॉर्थ ईस्ट. आज मैं बेसिकली नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जनरल महाजन जी ने ब्रिगेडियर महाजन जी ने कवर किया है, तो मैं खास करके मणिपुर को कवर करूंगा. अगर देखा जाए, जैसे कि बताया कि हम लोग अगर इंडियन आर्मी में प्रो राता से देखा जाए पॉपुलेशन वाइज, मणिपुर से सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं. मेरा 40 साल का नौकरी में कहीं पर भी गया तो मैं कोई भी स्टेशन, छोटा मोटा बड़ा, हमेशा एक आदमी मणिपुर से मिलेंगे. नॉर्थ ईस्ट से तो काफी मिलते थे. ये इसलिए क्योंकि हम लोग अपना इस देश को बहुत प्यार है और हम लोग जो है अपना देश के लिए खून बहाने में पीछे हटता नहीं. जैसे कि 71 वार में फाजिल्का सेक्टर में सबसे पहले थर्ड असम ने काफी ब्रेवली लड़ाई लड़ रहा था फाजिल्का में. और आपको पता है कि कारगिल वार में किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का नागा रेजिमेंट और बाकी फौज ने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है, जैसे जनरल साहब ने बताया. यही नहीं, आप देखिए अफगानिस्तान में भी हमारा एक डॉक्टर, मणिपुर का एक डॉक्टर एल जोतिन सिंह हो गया. बेगर एक उसके पास हथियार नहीं था. टेररिस्ट के पास AK-47 था.
लेकिन ये जो अनआर्म डॉक्टर ने टेररिस्ट को पीछे से पकड़ा, टेररिस्ट का एके गिर गया और टेररिस्ट ने अपना सुसाइड जैकेट डेटोनेट किया और दोनों मर गए। और मेजर लाइसम जोतिन बिकेम द फर्स्ट एएमसी ऑफिसर जो अशोक चक्र मिला है। आपको भी ये हैप्पी होगा कि इस बार एनडीए के रिजल्ट में सैनिक स्कूल इम्फाल से 17 लोग कैडेट सेलेक्ट हुआ है एनडीए के लिए। ये एक स्मॉल स्टेट के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। देखिए, जब मैं वार कॉलेज में जहां पर ब्रिगेडियर महाजन जी इंस्ट्रक्टर करते थे, मैं भी वहां पर पोस्टेड था और वहां पर जो है इन्फेंट्री का वायो होता है। इन्फेंट्री का वायो में करीब 150-200 आदमी होते थे उन दिनों में, और एक कोर्स में मणिपुर से 28 वायो आए थे। 28 वायो यानी करीब 10% के ऊपर है, 10 से 15% तक। इन्फेंट्री में 10 से 15% एक स्मॉल स्टेट से कमीशन लेना मेरा ख्याल से बहुत ज्यादा नंबर है। अभी तक मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से हम लोग 4 लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इसके अलावा बाकी आईटीबीपी, सीआरपीएफ, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ हर फोर्स में नॉर्थ ईस्ट से बहुत तादाद में ज्वाइन किया है। अगर ये देखा जाए मणिपुर का ही, हमारा एक्स सर्विसमैन का नफरी जो है, ये जो मणिपुर का पॉपुलेशन करीब 25 लाख 30 लाख है, इसमें हमारा एक्स सर्विसमैन का पॉपुलेशन जो है करीब 20,000 के ऊपर है। बहुत बढ़िया। 20,000 के ऊपर, यानी डिपेंडेंट वगैरह वगैरह लगा करके हम लोग करीब 70,000 वोटर्स है इन ए स्मॉल स्टेट ऑफ मणिपुर। अगर पॉपुलेशन वाइज देखे जाए तो मणिपुर का वोटिंग पॉपुलेशन जो है करीब 10 से 15 लाख है, यानी हम लोग करीब 10% वोटिंग पॉपुलेशन है। ये काफी, अगर एक स्मॉल स्टेट के लिए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो मैं ये जो मिलिट्री के बारे में ये भी बताना चाहता हूं कि हर जगह में अभी भी बहुत लोग आता है मेरे पास कि गाइडेंस दो, किस प्रकार से आर्मी में ज्वाइन करेंगे, किस प्रकार से बीएसएफ, सीआरपीएफ, नेवी। और सरप्राइजिंग है कि मणिपुर से इंडियन नेवी में काफी पिछली 15-20 साल में, इनफैक्ट 17-18 ईयर्स में इंडियन नेवी में काफी यंगस्टर जाकर के इंडियन नेवी में बोथ एज ए सेलर और एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया है। तो ये बहुत इंकरेजिंग है। और जैसे कि मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाना चाहता हूं डिफेंस के अलावा, कि डिफेंस में एक और इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक को एजुकेशनल सैनिक स्कूल और सैंक्शन किया है मणिपुर में, जो मेरा ख्याल से बहुत जल्दी चालू करेंगे। और इससे मेरा ख्याल से और भी आदमी डिफेंस फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ये सब में ज्वाइन करने में बहुत मदद मिलेगा। Okay. General Allen, purely because of lack of time, I'll move to the next topic. Before we go to Northeast and Manipur as a sporting power, I would like to just highlight 2 things. My own battalion, 7 Maratha Light Infantry, has a Naga officer from Dimapur, late Colonel Ao. He was awarded Sena Medal in the 1971 war, and also my battalion was commanded by an officer from Mizoram, late Brigadier Wainkunka. He is, of course, he got a Sena Medal in the 1971 war, and also my unit got a unit citation under him when Brigadier Wainkunka, then Colonel Wainkunka, was commanding. And in fact, Colonel Ao's son, Lieutenant Colonel Shashi Ao, had also joined my own battalion, and he served under me. I had the honor of serving under Colonel Ao, and of course his son was with me.
So those are the traditional things as far as the armed forces are concerned. Now I'll move ahead to the sporting power of the Northeast. And one thing that comes to my mind before I hand over the mic to General Allen is armed forces has one institution called ASI, Armed Forces Army Sports Institute, Army Sports Institute. And the job of this institution is to train Indian world-class athletes for taking part in various competitions. Now we have Olympics coming up in a short while. And what I want to tell you, this ASI is located in Pune, from where I'm speaking just now. And it has got about 200, 250, say, international class athletes training in boxing and wrestling and all other various disciplines. Would you believe that more than 40 to 50% of them are from the Northeast? Imagine what a proportion of high-level, international-level sportsmen from the Northeast. So now I will request General Allen to throw light. Why sports is so popular in the Northeast? How do the sportsmen there excel? What kind of a training goes on there, and so on? General Allen, for sporting power of Northeast. मैं ये मणिपुर के बारे में अगर बोला जाए कि अभी जो ओलंपिक्स आ रहा है उसमें मणिपुर से 5 participants in the Olympics. अगर ये हम लोगों ने प्रोराता पॉपुलेशन में निकाला जाए, अगर मणिपुर एक एथलीट प्रोड्यूस कर रहा है तो पंजाब 1.4 और हरियाणा जो सबसे ज्यादा कंटिजेंट भेज रहा है 2.49 भेज रहा है. तो इसलिए मणिपुर को स्पोर्ट्स का पावर हाउस बोला जाता है. ये जो हमारा जो फील है, आमतौर पर लोग सोचता है कि नहीं यहाँ का लोग जो है इंडिया का लोग है, ये है फुटबॉल में ठीक नहीं, ये नहीं, ये मत सोचिएगा. हमारा जो फोर्टे है, जो जहां पर हम लोग मजबूत है, एक तो हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जूडो और वुशु में है. सबसे पहले मैं हॉकी में आना चाहता हूं. हॉकी में अभी तक मणिपुर से 60 ओलंपियन मैन हॉकी में प्रोड्यूस किया है. उनमें से अगर हम देखा जाए तो ये अर्जुन अवार्ड और उसके अलावा बाकी पद्मश्री भी मिला हुआ है. अभी भी ये जो 2020 यानी 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में एक नया लड़का मणिपुर से हॉकी में शामिल हो रहा है. और ये हॉकी के अलावा फुटबॉल, मणिपुर से काफी इंटरनेशनल फुटबॉलर है. आप सोचेंगे हमारा देश तो फुटबॉल में कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ का बोथ मेल और फीमेल, लड़का लड़की दोनों यूरोप में जाकर खेलता है. अगर आप देखा जाए तो जब इंडिया में कुछ साल पहले अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला था, 8 फुटबॉलर मणिपुर से था. और उसका जो गोलकीपर है धीरज, अगर आप उसका कहानी सुनेगा, उसका माताजी, उसका माँ जो है सवेरे 3-4 बजे उठ करके नहा धो करके अपना व्यापार का सामान सर में उठा करके 5-6 किलोमीटर पैदल जाता है. उसके बाद बस में बैठ करके इम्फाल आता है, जो करीब 2 घंटे लगता है. और 3-4 घंटे इम्फाल में, जब मेन मार्केट खोलने से पहले, अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करके फिर वापस जाता है. ये इस प्रकार से उसको ब्रिंग अप किया है. और फुटबॉल जो है बड़ा पॉपुलर गेम है. उसके अलावा बाकी गेम भी बहुत पॉपुलर है. अभी अगर हमारा जो है विमेन फुटबॉल में देखा जाए कि नेशनल चैंपियनशिप में मणिपुर में ने 19 टाइम्स नेशनल चैंपियनशिप जीता है, जब से विमेन फुटबॉल इंट्रोड्यूस किया है.
जो ओलंपिक्स में इस बार 5 मणिपुर से हिस्सा ले रहा है, आप सबको पता है, एक तो MC मैरी कॉम है जो जो बॉक्सिंग में है, एक सुशीला करके एक लड़की है जो वुमेन हॉकी में हिस्सा लेगा, देन एक लड़की मीराबाई चनू वेट लिफ्टिंग में हिस्सा ले रही है, वो मेडल हॉप है, मैरी कॉम में मेडल हॉप है, और नीलकांत शर्मा ये मैन हॉकी में हिस्सा ले रहा है, और एक और लड़की है जिसका नाम सुशीला, वो भी जूडो में इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में। और जैसे कि हमारा फुटबॉल, वुमेन फुटबॉल टीम में तो बहुत ही ज्यादा आदमी, ज्यादा लड़कियां हैं। बेम्बेम देवी, उसको इंडियन फुटबॉल का दुर्गा माना जाता है, उसको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री भी दिया है। और एक बाला देवी करके एक लड़की है जो यूरोप में रेंजर FC स्कॉटलैंड का, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्ले इन द यूरोपियन सर्किट, प्लेइंग इन द रेंजर FC ऑफ स्कॉटलैंड। और बॉक्सिंग का तो आपको पता है कि किस प्रकार से मैरी कॉम बिकेम द फर्स्ट, the only women boxer from India who has ever won a Olympic medal. इसके अलावा हमारे पास डिंको सिंह था, और ये बाकी सरिता देवी तो आप सबको जानता है। और इसके अलावा ये जो एल इबोमचा सिंह जो इन सबको ट्रेनिंग करता था, उसको बॉक्सिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है। एक और दूसरा गेम्स है जहां पर जैसे मैंने बताया था आर्चरी में तो बोम्बियाला देवी ने 3 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है। ये बैड लक दैट उसने एक भी मेडल नहीं जीत सका, लेकिन शी हैज बीन अवार्डेड बोथ अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री। और वेट लिफ्टिंग है जो मणिपुर के लिए सबसे ज्यादा मेडल विनर, जो इंडिया के लिए बाकी ओलंपिक्स में खैर प्रॉब्लम हुआ है, बट बाकी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और बाकी सब कंपटीशन में बड़े अच्छे काम किया है। इसमें नाम आता है एन कुंजरानी देवी, जो सबसे ज्यादा मेडल जीता है। और अभी तक हमारा जो है 9 लड़कियां ने अर्जुन अवार्ड मिला है जो वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लिया है। इसके अलावा वुसु और जूडो में भी काफी नाम कमाया है। जैसे कि मैंने बताया, जूडो में अभी हम लोग ओलंपिक्स में इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा मैं एक और गेम ब्रिंग आउट करना चाहता हूं जो अभी रिवाइव कर रहा है। गेम का नाम है पोलो। पोलो मणिपुर से शुरू हुआ था। अंग्रेज ने यहां से सीख करके सिलचर में सबसे पहले, वर्ल्ड का सबसे पहले पोलो क्लब इस्टेब्लिश किया था। अभी भी हमारा यहाँ पर पोलो टूर्नामेंट होता है हर साल, जिसमें ऑस्ट्रेलियन और पूरा इंटरनेशनल टीम आकर के हिस्सा लेता है। वो भी अपना हमारा यहाँ पर लोकल ब्रीड हॉर्स के ऊपर ही हिस्सा लेता है, जो ओवर द इयर्स इट हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। और ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि महाजन जी ने बताया कि क्यों स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर है। शुरू में हमारा सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण लोग जो है अपना एनर्जी गेम्स में ही, स्पोर्ट्स में ध्यान देता था। और ये भी है कि स्पोर्ट्स जो है यहाँ का, मणिपुर का लोगों के खून में है। और मेरा ख्याल से ये स्पोर्ट्स का जो है हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करना, भारत का नाम रोशन करना, ये जारी रहेगा आने वाले दिन में। ओके जनरल एलन, जब तक स्पोर्टिंग पावर की बात करें, इसमें बात करने के लिए इतना ज्यादा है, लेकिन मैं 2 के नाम एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जो मेरे खुद के हीरोज है। एक तो इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर जो मिडफील्डर है उदांता सिंह, ये बहुत ही बढ़िया एक है, मणिपुर का है। और दूसरा धीरज, जिसका आपने नाम बताया था,
अभी जो एशियन कप फुटबॉल हुआ था उसमें गोवा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से उसने हिस्सा लिया था और पहली बार हमारा एक इंडियन क्लब मेरे ख्याल से सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया था, जहां पे वो हार गए थे। लेकिन ये हमारे इंडियन फुटबॉल की बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस है। तो स्पोर्टिंग पावर जिंदाबाद, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ वो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इस रीजन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। थोड़ी सी आपकी फ्रेम जरा एडजस्ट कर लेना एलन, आपका थोड़ा सा आधा सर कट रहा है, थोड़ा सा लैपटॉप आप एडजस्ट करो ताकि हाँ अभी 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 ज्यादा ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, वाटर रिसोर्सेज, वहां पे इतना ज्यादा पानी है, खासतौर अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो सकते हैं। इसके सिवाय दूसरा है जंगल्स का प्रोडक्ट बहुत है। इसके सिवाय एक मुझे चीज जो याद आ रही है कि वो हमारे जो सरकार है वो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना चाहती है। और दूसरा ही नहीं तो एक मैं नाम इसका एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ कि जो बहुत ही अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदा या इसमें किया जाता है, उसका वो एक हब वहां पे बनाना चाहती है। इसके सिवाय जो नॉर्थ ईस्ट के जो वाटरवेज है उसका इस्तेमाल करना चाहती है प्रोग्रेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके सिवाय बहुत सारी चीजें हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में गैस है, इसमें थोड़ा बहुत तेल भी नजर आता है आपको आसाम के अंदर। तो प्लीज टेल अस अबाउट वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और how are they being exploited, especially water, especially minerals, gas, etc. General Ellen. अगर नेचुरल रिसोर्सेस में देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेस में अनडिवाइडेड बिहार था। बिहार डिवाइड होने के बाद लोगों को ताजुब होगा कि असम यानी नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा है नेचुरल रिसोर्सेस। और खास करके लोग सोचते हैं कि जब हम बोलते हैं कि असम में कोल माफिया है, लोग बोलते हैं असम में कहाँ कोल है, लेकिन इंडिया का सबसे पहला कोल माइन जो सरफेस कोल माइन है मार्गेरिटा करके एक जगह है डिगबोई के पास, वहीं पर ही था। कहने का मतलब है काफी नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का भी बैम्बू, जब हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पोल्यूशन रिड्यूस करना, यहाँ का बैम्बू क्रॉप जो है वर्ल्ड फेमस है। अगर हम लोग मणिपुर स्पेसिफिकली में आ जाए तो देखिए गवर्नमेंट ने, हमारा सरकार ने कितना चेंज किया। हम लोग जब बचपन में थे मणिपुर जो है तकरीबन एक ही हाईवे में डिपेंड करते थे। अभी हमारा पास 5 मेजर हाईवे है और 6 सब्सिडरी हाईवे है। ये बड़ा डिफरेंस है। और हर टाउन में एयरफील्ड बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग जब बचपन में थे इम्फाल से एक फ्लाइट जाते थे कलकत्ते, उसका एज अगेंस्ट इट आज का तारीख में, अभी तो कोरोना है, तकरीबन 15 फ्लाइट हर रोज मणिपुर से इम्फाल से जाता है। डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली, अगर किसी ने चेन्नई जाना है, किसी ने कोयम्बतूर जाना है, किसी ने कहीं पर भी जाना है, उसका कनेक्टिंग फ्लाइट मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये है कम्युनिकेशन का। हेलीकॉप्टर सर्विस है। इसके अलावा लोग भी इतना चेंज हो गया कि मणिपुर में अभी इतना प्रोडक्शन शुरू हो गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। मार्केटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी टाइम लगेगा। और ये जो हमारा प्रोडक्ट्स है, खास करके एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, आप देखिए पाइनएप्पल, जिंजर, ब्लैक जिंजर जो बड़ा महंगा है, एवोकाडो आप विल बी सरप्राइज, आपको जो दिल्ली में 800 रुपया केजी है, यहाँ पर 100 रुपया में मिलता है। आप देखिए। और कम्युनिकेशन वाइज जैसे कि आता है तो अभी रेलवे लाइन मेरा ख्याल से अगर 2-3 साल में इम्फाल तक पहुंच जाएंगे, उसके अलावा आगे जाएंगे। देन हेलीकॉप्टर सर्विस है विद इन मणिपुर। देन हमारा अभी एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने वाला है, वो है एशियन हाईवे। जो एशियन हाईवे जो है तकरीबन
इसे 4 लेन हाईवे काफी उससे मदद मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है मणिपुर जो है इंडिया का, इट इज द गेटवे टू द ईस्ट, it is the gateway to the east, and it will definitely, the Asian Highway, I have traveled there a number of times, it is yet to be completed, but definitely when it gets completed, it is going to be an excellent way of communication. Yes, थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहां पर, क्योंकि इंडो म्यांमार बॉर्डर becomes a bottleneck because of इमिग्रेशन फैसिलिटी नहीं है। मैंने काफी बार रिक्वेस्ट किया है, और मैं ख्याल से भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट विल वेरी शॉर्टली इंश्योर दैट, जैसे कि पंजाब के साथ पाकिस्तान के साथ देयर आर 6 इमिग्रेशन पॉइंट्स, सिमिलरली बर्मा के साथ कम से कम 1 इमिग्रेशन पॉइंट मणिपुर में रखने से क्या होगा, बड़ा सुविधा हो जाएगा। अभी व्हाट हैपेंस इज इमिग्रेशन इज ओनली व्हेन रिक्वायर, ये जो दिल्ली से या कहीं कस्टम डिपार्टमेंट से बात करके वो आ जाता है, नहीं तो इमिग्रेशन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन नॉटविथस्टैंडिंग दैट, अगर आप देखिए कितना अपॉर्चुनिटी, कितना सरकार ध्यान दे रहा है। मणिपुर में अभी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में धनमंजूरी यूनिवर्सिटी है, और मणिपुर यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी फंक्शनल है, एक चोराचांदपुर में, 2 इम्फाल में। इसके अलावा एक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने का इनलाइन है। ये सब क्यों कर रहा है हमारा सरकार, क्योंकि वो सोचता है कि इस स्टेट में इतना पोटेंशियल है, इसको पहले जो एक्सप्लॉइट नहीं किया अभी एक्सप्लॉइट करना चाहिए करके, इसलिए है। और पुराना 20 साल पहले मणिपुरी यहाँ का लोग जो है एनआरआई बहुत कम था, अभी तो कहीं पर भी, कोई पर भी, दुनिया के कहीं पर भी चले जाओ, इनफैक्ट द वर्ल्ड इज बिकम ए ग्लोबल विलेज। अभी जो कोरोना हुआ था, मणिपुरी एसोसिएशन इन यूएसए रियली हेल्प्ड अस, एंड सिमिलरली देयर आर मेनी अदर प्लेसेस वेयर the boys are really excelling. The other day there was a test pilot in NASA. One of the pilot was one of my juniors who was studying in Chinese school in Imphal. See, so that is how the people have really progressed. So there is no dearth of opportunity. There is no dearth of. So there is plenty of. One I forgot. There is a lake known as Loktak Lake, sir. You must be aware. Yeah, I have seen it. It is the largest freshwater lake, and in fact a lot of fishing production is going on there. So earlier a lot of fish used to be imported. Now we are trying to make it self-sufficient, both in fishing and so many other agricultural products. Okay. When we talk of economic progress, one of the ways of prospering very fast is the sector of tourism. And I think Northeast has got tremendous potential as far as tourism is concerned. I have spent a fair amount of my time there in various states of Arunachal Pradesh and Manipur and Mizoram, etc. And I intend coming to Meghalaya again because one of my relations is posted there. But what I want to tell you here is that there is a lot of opportunities as far as tourism is concerned. So may I request you to focus a bit on tourism and the potential and how best can we utilize it, and of course tell us as to what all places a person from the rest of India should visit should he want to visit the state of Northeast from the tourism point of view. General Ellen. In the last infrastructure, I just forgot one point which I must add, that I don't know how many of us are aware about the prepaid electricity system. We are aware about the prepaid mobile. Similarly, in Manipur, what we have today is prepaid electricity. In fact, we do not go and nobody serves you a bill. You have to generate your own bill and pay. In fact, the meter will give you a sound that your prepaid is due. And the best part is, जब से प्रीपेड आया है यहाँ पर पावर का चोरी बिल्कुल खत्म हो गया, और
power supply is absolutely much better than the national average. In fact, we hardly have a load shedding or power cut. काफी अच्छा है power का. This is what I wanted to bring out about a prepaid electricity system, which is unique in the country, is in Imphal. Now coming down to the tourism sector, actually कोई भी आदमी यहाँ पर आना चाहता है तो हमारा यहाँ पर जो हमारा रोड्स है मणिपुर का, खास करके वैली में, these roads are world standard roads. आप इम्फाल में रात को 10-11 बजे गाड़ी चलाइए, आप दिखाई देगा कि हमारा रोड्स जो है इंडिया का कई सिटी, इंदौर या पुणे जहां पर मैंने नौकरी किया है, उससे कोई कम नहीं है विड्थ में और स्टैंडर्ड में. एंड स्पेशली व्हेन यू गो टुवर्ड्स द एयरपोर्ट रोड एंड अदर्स, दीज आर ऑल 6 लेन रोड्स, वाइड, वेरी वाइड रोड्स. वी आर लकी, हम लोग लकी है क्योंकि ये रोड बड़ा है, क्योंकि बाकी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स हिल कैपिटल है, जैसे कोहिमा है, आइजोल है, शिलोंग है, हिल स्टेशन होने के कारण वहां पर रोड वाइड नहीं है, लेकिन हमारा तो वैली है, इसलिए वेरी गुड रोड सर. देन कमिंग डाउन टू द प्रॉपर tourism, we can have 3 types of tourists visiting us, or it can be combined. First is the patriotic tourism, in which there are places जहां पर INA ने झंडा फहराया, INA मेमोरियल, देन INA ने हेडक्वार्टर बनाया, जहां पर INA ने घमासान लड़ाई लड़ा. ये सब जो है हिस्टोरिक टूरिज्म, पेट्रियोटिक. और हिस्टोरिक टूरिज्म में जैसे कि फॉरेनर है, उनका ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लड़ा है, those places are very interesting, well preserved, very nicely done up. And normal tourism we can have, like Loktak Lake is one of the best. I will put it this: having visited Switzerland and a number of countries, in no way is Manipur less than any other country as far as the scenic beauty is concerned. As a result, अभी लोगों ने होम स्टे के लिए खोलना शुरू कर दिया है. वर्ल्ड स्टैंडर्ड होटल आ गया है हमारे पास. एक जमाने में होटल ठीक नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं था, रोड ठीक नहीं था. नाउ द ट्रांसपोर्टेशन is very good. One can hire any type of transport. The tourist guides are available, place of stay is available, brochures are available, agencies are available, flights are available. The only thing is that COVID is the one which is really putting us a stop. Otherwise, it is excellent. I'll put it this way. Yeah. I would like to highlight that especially in Arunachal Pradesh, you can visit the border areas where the Battle of 1962 were fought along the various valleys of Siang, Siom, Subansiri, then Lohit Valley, etc. Similarly, in Manipur, where a lot of battles were fought, there are places related to social, cultural tourism. There are places which talk about Second World War vintage and battles post 1947. So the opportunities are tremendous. Now, purely because of lack of time, another 5 minutes, we must end this session. So I would like now to speak about the social progress in Manipur. When you talk of social progress, we talk about Beti Bachao, Beti Badhao. Then we talk about empowerment of women. We talk about empowerment of, socially backward people, those kind of things. But what I have seen is I had a fair amount of stay in the Northeast. I found that the women, even in those days, I'm talking of 70s and 80s and 90s, the women were always, you could see them everywhere. There was no question of a woman being in the background, that kind of a thing, So please highlight the social kind of a progress which the society of Northeast has done, and what can the rest of the nation learn from social equality, gender equality from the Northeast. General Ellen. As brought out by Brigadier Mahajan ji, we talk about Beti Padhao, Beti Bachao, but you will be surprised to know, आपको आश्चर्य होगा कि हमारा यहाँ पर एक इमा मार्केट है जो 400 साल पुराना है. ये 1530 की करीब शुरू हुआ था. इसमें सिर्फ all the shopkeepers are women. Customer can be male, but all the shopkeepers are women. इनफैक्ट अगर आज का तारीख में ये देखा जाए तो एक छोटे मोटे 7 to 10 मॉल्स का साइज है. आप देखिए कितना बड़ा है. इट इज नॉट ए स्मॉल हार्ट एंड डबल स्टोरी है. और इसमें
7 से 10,000 वुमेन वेंडर बैठता है। ये एशिया में सबसे बड़ा ऑल वुमेन मार्केट है। इसके अलावा वुमेन हैज ऑलवेज बीन द फोरफ्रंट। 1904 में और 1939 में एक किस्सा था जिसका नाम है नुपी लान। नुपी यानी वुमेन, लान मीन्स वार। ये है अंग्रेज ने जब यहाँ से धान या पैडी निकालने के लिए कोशिश किया और आर्टिफिशियल फेमिन क्रिएट करने की कोशिश किया, वुमेन ने उठ करके उन्होंने रोका। और आपको पता है कि जब मनोरमा देवी किस्सा का, जहां पर वुमेन ने किस प्रकार से फोर फ्रंट में हर स्ट्रगल्स में लिया है। इसलिए यहाँ का वुमेन जो है, अगर आप सोचेगा कि ये ऑलरेडी वेरी मच इन प्रोग्रेस है। नंबर 2, यहाँ पर डाउरी सिस्टम नहीं है, कोई डाउरी डेथ नहीं है, कोई वो नहीं कि डाउरी में कितना लाया, क्या लाया, नहीं, और कुछ नहीं है। देन फिर इसके अलावा हर जगह में आपको अखबार में पड़ेगा कि कास्ट रिलेटेड क्राइम, कास्ट, हायर कास्ट ने लोअर कास्ट को ये किया। हमारा यहाँ पर पूरा नॉर्थ ईस्ट में कास्ट का क्राइम बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मणिपुर में तो बिल्कुल 0 है। इसके अलावा आप देखिए सेक्स रेशियो, बाकी इंडिया में सेक्स रेशियो जो है, कई स्टेट में काफी फिगर है कि इतना एस्क्यूट सेक्स रेशियो हो गया कि मेल इतना हो गया और फीमेल इतना कम हो गया। हमारा स्टेट में सेक्स रेशियो जो है फीमेल ज्यादा है, मेल कम है। इसका मतलब जो है हमारा यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी इज वेरी वेरी हाई। In fact, it is one of the best in the whole world. And इसके अलावा only my feeling is that many people do not know that in our state, women and male, we have the equal opportunity everywhere, and it means it is something unimaginable in other rest of the part of the country. Yeah, thank you. Purely because of lack of time, we must end this session. And I'll make my concluding remarks, and before that, I'll request General Ellen to conclude the whole session as to what all we covered today, and then I'll give my concluding remarks, and then we'll end the session. General Ellen, for your concluding remarks on the entire session. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काफी लोगों के मन में बैठा है कि एक स्टीरियोटाइप है कि नॉर्थ ईस्ट अंडर डेवलप है, अनडेवलप है, देश से अलग होना चाहिए। नहीं है, हम लोग इस देश का हिस्सा है। इस देश का रक्षा में, सिक्योरिटी में हम लोग इक्वल और इवन मोर देन इक्वल कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली इस देश का जो स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम किसी से कम नहीं है। हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मे बी स्टार्ट ऑफ में थोड़ा सा स्लो था, लेकिन अभी हम लोग पिकअप हो रहा है। और हमारा पास टूरिस्ट के लिए बिल्कुल अरुणाचल से लेकर, मेघालय से लेकर, मिजोरम से लेकर हर जगह में ब्यूटीफुल जगह है। मणिपुर में भी है। एंड लास्टली, व्हेन इट कम्स स्टेटस ऑफ वुमेन, लो कास्ट एंड अदर कास्ट crime and other thing, it is almost negligible in our state. Negligible. Rapes have started occurring, but otherwise rapes are unknown in Northeast. And if it occurs, it is in single figure, maybe in once in say month, once in say many years. It is not a very, very common phenomenon. So Northeast in no way is different from the rest of the country. We are very much part of the country and we are going along with everyone. ये बोलकर के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय भारत। Okay, मैं लास्ट में मेरे रिमार्क्स में इतना ही बोलूंगा कि we had a very interesting session with General Ellen where we spoke about Northeast contribution to India's security, Northeast contribution to India's economic progress, Northeast contribution to the sporting power, the social sector, etc. What I want to say in very briefly is that I consider Northeast as a growth engine as far as the Indian economy is concerned. It should not be the other way around. There are tremendous opportunities available. And with, I think the biggest strength of Northeast, which we have not spoken about, is the people of Northeast. They are so hardworking. They are so tough. They are physically so strong. Their reactions are so fast.
they are used to such a tough life that they take to any profession like a duck taking to a water, you know. So I think the biggest strength of the Northeast India are the people. So all that remains for me now is to thank General Ellen Singh for an excellent session. And we hope that all of you have liked it. Please like it. Please share this session's link with as many people as possible. And we will end up this program by thanking General Ellen and thanking everybody who was present. Okay, thanks a lot and Jai Hind. And thank you, General. Right. Right. Thank you, sir. I am ending this meeting.